Okay, we have seen instruction cycle. So what we do in the instruction cycle is fetch the instruction from the memory and perform the operation. Okay, and store the result back to the memory or register. So what we are doing, see in between there is some value to be stored somewhere. Like if we are performing addition, we have to store value of addition and some additional information like whether it's carry, whether it has a carry or not, whether the resultant is 0 or not. Some kind of information is stored into the flag register. The resultant of operation is stored in the accumulator, and the extra information associated with the result is stored in the flag register. So flag register is 1-bit memory which used to hold the additional information like carry, overflow bits and 0 flag, parity bits, etc. So there are two types of flag. First one is conditional flag and second one is control flag. We will see one by one. First, let's see control flag. Under the control flag, the first flag is carry flag. Okay. So if we are performing some operation like 101 and we are adding 110. Okay. What is it? 101, 101, 110, and one carry is here. Okay, one extra bit. So if we are getting one extra bit out of MSB, this is called least significant bit and this is called most significant bit. Okay, if we are getting some extra bit, we are getting one extra bit out of MSB. MSB is here. Okay, if you get an extra bit out of MSB, this is known as carry flag. Okay, if we are getting this, then we will set carry to 1, otherwise set carry 0. If we are getting an extra bit out of MSB, carry will be set, means there is carry present in the flag, and if there is no bit out of MSB, then carry will be set to 0. Okay. So first one is carry flag. We have seen. We are just storing whether there is some carry bit present or not. Next is parity bit, parity flag. We are going to set parity flag to 1. Okay, set to 1 if there is even number of 1%. Okay, like this is the value. It has number of 1, 2. This is even. The number of 1 is even. Okay. If this is the scenario, then number of 1 is odd. 3 number of 1. Okay. If not, then 2 number of 1s. This means the number of 1 is even. If such is the case, then parity flag will be set to 1, and this is known as even flag. Even parity. Even parity. And in other condition, it is set to 0, which is known as odd parity. Odd parity. See, we will discuss auxiliary carry flag in the detail. Okay, let's skip it for here. Next, 0 flag. If we are performing some operation, okay, like say I divided, subtracted 5 from 5, then the resultant will be 0. If accumulator contains resultant as a 0, okay, if accumulator has value 0, then the 0 flag will be set to 1. Okay, see here, take a bit extra care. What people does, they think the 0 flag is 0 means result is 0 and 0 flag is 1 means result is not 0. This is not the case. If accumulator contains value 0, means if you are performing some operation and its value is 0, okay, so accumulator value is 0. If accumulator value is 0, then 0 flag will be set to 1, and in the rest of the condition 0 flag will be set to 0. Okay, next, sign bit, sign flag. Let's say this is the scenario. Okay, we have performed some operation and we found out this result. We have
to take care of MSB bit. Okay, if MSB bit is 1, then sign flag is set to 1. It means value is negative. Okay, sign flag is set to 1. It means value is negative. Otherwise, it is set to 0. This means value is positive. Okay, I have to erase this because there is no extra space here. I'm going to erase it. So I've seen sign flag. Last is overflow flag. See, we can find out the value of overflow flag with this operation. What is this? Let's say x is 1 0 1, okay, and y is 1 0 0. We are going to perform operation of addition. See, it is saying that if x is MSB bit, we have to take the MSB bits, okay? MSB bits of x and y. It is saying if x and y, x is 1 and y is 1, and after performing operation we are finding value as z bar, yani resultant is going to be 0. If this is the condition in MSB bits, then overflow bits will be set to 1. Overflow flag will be set to 1, okay, otherwise 0. The second case is if MSB bits is 0, if both x and y has MSB bits 0, and in the z any output having MSB bits 1, then overflow flag will be set to 1, otherwise it will be set to 0. Let's see once more. This is what x, this is y, and resultant is going to be z. Okay, we are going to take the MSB bits of both resultant and operands. First operand is 0 0 1, second is 0 0 0. X is 0 means it is x bar, y is 0 it means it is y bar. If such is the condition and resultant is 1 means z, then overflow flag will be set to 1. Okay, and in the second scenario, if x is 1 means most significant bit of x is 1, y is 1, okay, and z is 0 means z bar, then overflow flag will be set to 1, else overflow flag will be set to 0. Okay, got it? So now let's see auxiliary carry flag. Okay, now let's see auxiliary carry flag. See, हमारे पास एक बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू है, ओके, यानी कि जो हम नॉर्मल लाइफ में जो नंबर स्टोर जिस नंबर पे हम लोग कोई भी अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक का. ठीक है, तो कंप्यूटर में बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू बीसीडी यूज किया जाता है जो हम डेली लाइफ में 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं इसके लिए. ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक हमारा वैलिड बीसीडी कोड हो गया. ओके, 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने बिट्स की जरूरत होगी? अगर 3 बिट लेते हैं तो 3 बिट में सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 0 to 7 कर सकते हैं. ओके, हमारे पास यहाँ 8 और 9 भी है, तो इसके लिए हमें 4 बिट की जरूरत पड़ेगी, 4 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बीसीडी नंबर 0 से 9 तक के लिए हमको 4 बिट्स की जरूरत होगी. और 4 बिट्स का यूज करके टोटल नंबर बनाया जा सकता है 2 to power 4 यानी कि 16. फर्स्ट नंबर लेट से 0 1 2 अप टू 9, देन जो हमारा वैल्यू होता है 10 उसको बोलते हैं ए. ओके, 11 को बी, सी, डी, ई एंड एफ. जब 4 बिट में कंप्लीट वैल्यू चारों 1 1 हो तो क्या होता है? एफ. ठीक है, चारों 1 1 हो तो एफ. हमारे पास वैलिड बीसीडी कितना है? 0 to 9, यानी कि 10 वैलिड बीसीडी, 10 वैलिड बीसीडी एंड रिमेनिंग 6 इनवैलिड बीसीडी. ठीक है, 10 क्या हो गया? वैलिड बीसीडी, और रिमेनिंग क्या? इनवैलिड बीसीडी. सी, हम चाहे
तो 4 से ज्यादा कितना भी बिट ले सकते हैं। सपोज करो कि हम 5 बिट में यूज कर सकते हैं, 5 बिट का यूज करके इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से कि हमारा 0 to 9 वैलिड होगा, बाकी इनवैलिड। तो 2⁵ यानी कि 32 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 बिट में, लेकिन हमारे पास वैलिड सिर्फ और सिर्फ 10 ही है, बाकी क्या है इनवैलिड। तो ऑक्सिलरी कैरी किस लिए होता है, यूज टू होल्ड रेंज एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ लोअर निबल, ओके, यूज टू होल्ड रेंज एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ लोअर निबल। लाइक हमारे पास कोई इस तरह से नंबर है, निबल क्या होता है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन, ये एक निबल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर निबल, इसको बोलते हैं हायर निबल, ठीक है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, कैसे पहचान करेंगे, जब लास्ट एमएसबी बिट्स होगा लोअर निबल का, उसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा बिट हायर निबल की तरफ जा रहा है, तब जाकर के ऑक्सिलरी कैरी के वैल्यू को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैरी का यूज होता है लोअर निबल से अगर कोई वैल्यू एक्सीड कर रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए। हमारे पास सपोज ये हो गया फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है, इनिशियली अनसेट। सी हमारे पास 2 फॉर्मेट है इसमें, ठीक, बीसीडी नंबर पे अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए या बीसीडी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट है अनपैक्ड फॉर्मेट, ठीक है। अनपैक्ड में क्या करते हैं कि जो हर एक नंबर है, ठीक है, लाइक हमारे पास 1287 एक नंबर हो गया, इस पे हमको मान लो ऐड करना है 386 में, ओके। तो अनपैक्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि हर एक नंबर को, ठीक है, हर एक नंबर के डिजिट्स को, ओके, 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको पता है कि जो हमारा नंबर होता है वैलिड डेसिमल नंबर, वो यहाँ पे या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, ओके। तो हमारे पास 0 से 9 इन 10 वैलिड बीसीडी नंबर्स हो गए। 8 बिट से कंप्लीटली बना सकते हैं 2⁸8 यानी कि 256, ओके। टोटल इससे 256 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर, 0 से लेकर 9। तो 246 नंबर क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली वेस्ट हो जा रहा है, और 10 नंबर क्या है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट करंटली यूज में नहीं है। इसके जगह पे सेकेंड फॉर्मेट यूज होता है पैक्ड, ठीक है। फर्स्ट था फॉर्मेट अनपैक्ड, सेकेंड था पैक्ड। पैक्ड में यूज करते हैं 4 बिट, ठीक है। 4 बिट यानी कि जो हर एक डिजिट है उसको मैक्सिमम 4 बिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक बिट को हम 0 से लेकर के 9 यानी 10 वैलिड नंबर हैं, बाकी इनवैलिड। हम ले रहे हैं 4 बिट। 4 बिट से टोटल नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2⁴ यानी कि 16 नंबर, जिसमें से कि 10 नंबर का कंप्लीटली यूज हो रहा है 0 से लेकर 9, ठीक है। और बाकी 6 नंबर यानी कि A to F 6 नंबर ये क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई वैल्यू सपोज 9 को एक्सीड कर गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हमको एडजस्ट करना होगा, यानी कि सिंपली ऐड कर दिए तो हमारा नंबर एक्चुअल नंबर नहीं मिल पाएगा, हमको कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। उसको देखते हैं। उस एडजस्टमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमारे पास पैक्ड फॉर्मेट है, ठीक है, पैक्ड फॉर्मेट यानी कि पैक्ड बीसीडी। हम क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर ले रहे हैं, सपोज ले लिए 8 एंड 9, 28 एंड 98, ओके। इन दोनों को ऐड करना है। हम क्या बोले, फर्स्ट हर एक डिजिट्स को हमको रिप्रेजेंट करना है 4 बिट्स से। 8 को 4 बिट्स से लिखेंगे तो 1 0 0 0, 2 को लिखेंगे तो 1 0 0 0, 9 को लिखेंगे तो 1 0 0 1 एंड 1, ठीक है। इसको ऐड करते हैं 1 0 0 1 1 कितना हो जाएगा 0, ओके। अब यहां से एक बीट यानी कि 1 क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है लोअर निबल, ये क्या है हायर निबल। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 बिट को हायर निबल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे ही 1 बिट को हायर निबल में ट्रांसफर किए, इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि 4 बिट से मैक्सिमम यूज स्टोर कर सकते हैं f यानी कि 15, और ये कितना था 9 8 9 8 17, ओके।
यानी कि रेंज एक्सीड कर गया। तो कैरी भेज रहे हैं मतलब कि रेंज हमारा इस लोअर निबल से एक्सीड कर गया है। तो 1 जैसे ही लोअर निबल से भेजे हायर निबल की तरफ तो एक्सिलरी कैरी को सेट कर देंगे, यानी कि एक्सिलरी कैरी का सेट का मतलब है कि लोअर निबल से रेंज एक्सीड कर गया। ठीक है, एडिशन लोअर निबल में कंप्लीटली नहीं आ पाएगा। 17 4 बिट में मैक्सिमम 15 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 8 17 आ रहा है, स्टोर नहीं हो सकता, एक्सीड कर गया वैल्यू। तो हम यहाँ भेजे 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अगर इस बिट से एमएसबी बिट से कोई एक्स्ट्रा बिट जाता है उसको बोलते हैं कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग यहाँ पे 0 है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है, ठीक है, क्या इसको ऐड करते हैं, 47 है, तो क्या 47 एग्जैक्टली आया हुआ है, ठीक है। तो इसको निबल बाय निबल डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या है 4। हमारा नंबर आया 41, चाहिए कितना 47। तो हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट, अगर लोअर निबल का वैल्यू 9 से कम हो, 9 से कम हो, ठीक है, एंड एक्सिलरी कैरी का वैल्यू 1 है, एक्सिलरी कैरी का वैल्यू 1 है, देन क्या करना है कि इसमें 6 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, देन ऐड 6 टू लोअर निबल, ओके, ऐड 6 टू लोअर निबल। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इस लोअर निबल में 6 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐड किए, ये क्या है 1 1 1 0 0 0 1 0। अब देखते हैं इसको जब फाइंड करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये क्या है 7 और हायर निबल 4। अब जा करके हमारा वैल्यू क्या आया 47, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो कंसीडर करते हैं, ये 9 था और ये मान लेते हैं 8, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड केस, ये कितना हो गया 9, इसको लिखेंगे 1 0 0 1 8 1 0 0 0, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 187। इसको बाइनरी फॉर्म में ऐड करते हैं 1 0 0 1, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं कि ये 0 था। अब क्या हो रहा है 1 1 0 एंड क्या हो रहा है 1 बिट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, यानी कि लोअर निबल से हायर निबल की तरफ 1 बिट जा रहा है। इसका मतलब एक्सिलरी कैरी का वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड किए 1 1 0 1 0 1 1 0 एंड 1 क्या आ रहा है एमएसबी बिट्स। ये क्या है एमएसबी बिट्स, ये है लोअर निबल, ये है हायर निबल, और ये क्या है एमएसबी बिट्स, ठीक है। एमएसबी बिट्स से नंबर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी बिट अगर एमएसबी बिट्स से बाहर जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा बिट एमएसबी बिट्स से बाहर जा रहा है, तो कैरी फ्लैग को सेट करना होगा, ठीक है, कैरी फ्लैग को सेट करना होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो है रिजल्टेंट कंप्लीटली सही है जितना हमको चाहिए 187। हम क्या करते हैं, इसको देखें, ये क्या है 1, ठीक है, और ये क्या है 2। हमारा आउटपुट आ रहा है 21 इसके अकॉर्डिंग, और ओरिजिनल आना चाहिए था 187, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, लोअर निबल लेस देन 9, यस, एंड एक्सिलरी कैरी सेट, यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो हम क्या करेंगे, लोअर निबल में 6 ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर दिए 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है 7 और कितना है 2। क्या हमारा आउटपुट आ गया जितना चाहिए था 187 एंड 27। अभी भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट 187 है, जबकि आया कितना है 27। सेकंड केस क्या है कि जब हायर निबल का वैल्यू लेस देन 9 हो एंड कैरी का वैल्यू 1 हो, ठीक है, हायर निबल का वैल्यू लेस देन 9 हो एंड कैरी का वैल्यू 1 हो, तो हायर निबल में 6 ऐड करना है, देन ऐड 6 टू हायर निबल, ठीक है, देन ऐड 6 टू हायर निबल। तो फाइनल हमारा आउटपुट क्या है इतना। हमको क्या करना है 6 ऐड करना है हायर निबल में, लोअर निबल में कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है, 1 आ जाएगा 1 1 0 1 एंड 0 1 1 1, ठीक है। ये कितना है 7 और ये कितना है 8। हमारा आउटपुट आ गया 87, चाहिए कितना 187। सी
एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर में जब वैल्यू स्टोर होता है तो किस फॉर्मेट में, हमारा ये आउटपुट कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में, एंड कैरी कहाँ चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। जब कैरी फ्लैग ये हो गया एडजस्टमेंट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बीसीडी के लिए। अगर कैरी फ्लैग सेट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट की एमएसबी बिट्स में हमका कैरी फ्लैग सेट है तो रिजल्टेंट के एमएसबी बिट्स पे जाकर कैरी को रख देना है, ठीक है, फाइनली। ओके, ये क्या है, लोअर, और इधर क्या आएंगे, एमएसबी, यानी कि एमएसबी बिट्स पे 1 रख देना है, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज। फाइनल वैल्यू क्या आ गया हमारा 187, ठीक है। अब क्या है, आउटपुट हमारा सेम आ गया जैसा चाहिए था। वैल्यू के साथ ऑलवेज कैरी एसोसिएटेड होता है। सपोज हमारा 87 रहता है और कैरी फ्लैग 0 रहता है, देन अगेन यहाँ पे 0 एसोसिएटेड है। 0 एसोसिएट करने और ना करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तब जाकर के एंटर क्रिएट कर रहा। तो सॉरी, एक्सिलरी कैरी का ये सारा ऑपरेशंस काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस भी आ जाए गेट में, ठीक है, तो इसको थोड़ा केयर करने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी कंट्रोल फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग के अंदर 3 टाइप के फ्लैग अवेलेबल है। ओके, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन फ्लैग। सी, डायरेक्शन फ्लैग का काम होता है, सपोज आपके पास मेमोरी लोकेशन है, अगर आपको मेमोरी लोकेशन 100 से स्टार्ट करके फ्लो किधर करना है, लाइक कि 1001 की तरफ फ्लो करना है या 999 के करीब जाना है, ओके, किस डायरेक्शन में फ्लो करना है ये बताएगा डायरेक्शन फ्लो। ओके, तो इसमें 2 होंगे, एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि अगर आपको लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ मेमोरी एक्सेस करना है तब आपको यूज करना है ऑटो इंक्रीमेंट फ्लैग। सेकेंड, अगर आपको हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ जाना है तब आपको यूज करना है डिक्रीमेंट फ्लैग, ठीक है। सेकेंड वन इज इंटरप्ट फ्लैग। सो इंटरप्ट फ्लैग का बेसिकली काम होता है, सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, अपने लैपटॉप के चार्जर को निकाल कर आप मूवी देख रहे हो, सडनली आपका बैटरी 15% हो गया। ओके, तो इस फ्लैग का यूज होता है बेसिकली आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, सपोज करो कि आपके पास कोई फ्लैग नहीं है इस इवेंट को, यानी कि बैटरी लो इवेंट को हैंडल करने के लिए कोई फ्लैग नहीं है, तो आप कोई काम कर रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो जैसे ही बैटरी ड्रेन होगा आपका लैपटॉप शट डाउन होगा आपको विदाउट इन्फॉर्म किए हुए। ओके, तो इंटरप्ट फ्लैग का बेसिक यूज होता है कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को शो कर सकते हो। ओके, यानी कि जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम उसको बीच में स्टॉप करके, लाइक कि आपको ऐड का प्रोग्राम चल रहा है या मूवी वॉच कर रहे हो, ओके, मूवी वॉच कर रहे हो, मूवी में यहाँ पे तारे जमीन पे पास कर दिया गया है और तारे जमीन पे मूवी चल रहा है, टाइम बाय टाइम आप देखे जा रहे हो। ओके, यहाँ पे पहुंचे तो क्या होता है कि हर एक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में। ओके, तो मूवी नाम के प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे और हर इंस्ट्रक्शन कैसे टर्मिनेटेड होता है, सेमीकोलन से। सपोज प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी को बोलते हैं, अभी क्या करते हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन को याद रखते हैं, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को जैसे ही इन पहुंचे, इंस्ट्रक्शन इन, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम इन, ओके, तो वो क्या करेगा, तो ट्रैप पिन को चेक करेगा, इंटरप्ट फ्लैग को चेक करेगा कि इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू 0 है या नहीं। ओके, सपोज करते हैं इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू 0 है, यहां पे पहुंचा, ठीक है, देखा इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूट स्टार्ट कर दिया, यहां पे पहुंचा तब तक आपकी बैटरी का, आपके लैपटॉप का बैटरी क्या हो गया, ड्रेन होकर के 15% पे आ गया है। ओके, 15% पे आया तो क्या करेगा कि ये क्या करेगा, फ्लैग को सेट कर देगा। ओके, जो भी फ्लैग कंप्यूटर के पावर को हैंडल करने के लिए बना हुआ है उसके जाकर के सेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे कि इस सेट किया, सपोज करो कि आप यहां से स्टार्ट किया एग्जीक्यूट करना, ठीक है, आप यहां पे पहुंचे तब तक फ्लैग का वैल्यू सेट है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन यहीं से छोड़ेगा और सीधे फ्लैग को जाकर के चेक करेगा और फ्लैग वाले ऑपरेशन को हैंडल करेगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के जब लास्ट पहुंचेगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेगा, तब जाकर के फ्लैग को चेक करेगा, और तब जाकर के अगर फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू 1 है, उसका मतलब कि कोई ना कोई इंटरप्शन हो गया है प्रोग्राम में, से पावर लो हो गया है, तो आपको क्या करना है, चार्ज में प्लग इन करना है, देन आपको मूवी फिर से प्ले करना है। ओके, तो इंटरप्ट फ्लैग का काम होता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हैंडल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग का काम होता है प्रोग्राम को डिबग करने के लिए। ओके,
प्रोग्राम को डिबग करने के लिए। लाइक कि हमारे पास मल्टीपल लाइन का प्रोग्राम है, हम क्या कर रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर लाइन पे क्या कर रहे हैं, डिबगिंग लगाया, इंटरप्ट फ्लैग लगाया। जैसे ही हमने डिबगिंग के लिए ऑन किया तो ट्रैप फ्लैग क्या करेगा कि अब वन गो में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। ये अपने आप क्या करेगा कि जहां पे आपने डिबगिंग के लिए लगाया हुआ है, जहां पे ट्रैप फ्लैग सेट किया हुआ है, उसके बाद ये क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सोल्व करना स्टार्ट करेगा, प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद ऑटोमेटिकली एक क्या करेगा, ट्रैप सेट कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रैप सेट कर देगा। कंट्रोल फ्लैग में टोटली 3 था, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ट्रैप फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग यानी कि मेमोरी में यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो हमको 5 से इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए 5 से 4 3 2 1 जाना है या 1 से 2 3 4 5 जाना है, ये बताएगा डायरेक्शन फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग बताएगा कोई इवेंट चल रहा है, इन बिटवीन अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हो गया जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, आपके ऑब्वियसली आप मूवी देख रहे होगे तो उसका प्रायोरिटी आपका पावर ड्राइविंग के कंपैरिजन में कम है, ओके। तो क्या करेगा कि यहाँ पे इंटरप्ट को क्या करने लगेगा, सर्विस देने लगेगा, ठीक है। फिलहाल उसको नहीं पढ़ते हैं, इतना ही ध्यान रखते हैं कि इंटरप्ट फ्लैग का काम है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो आया है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को सेट करने के लिए। ट्रैप फ्लैग का काम होता है डिबगिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग कंडीशनल फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्रेसिंग मोड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एड्रेसिंग मोड काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मिस ना करें, ओके। थैंक यू।